गलत काम ते ਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਗਰਦਨ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈ ਪੈਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਾ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ वापस घर गई उसने इतना मारा उसकी मामियों ने उसको तशद्दुद करता रहा। जब जो अब करता वो पहले तो करता हूँ वो बात ये कि उसने हमें बताया नहीं है। उसके मामू को फोन किया उन्होंने कहा हाँ मुकद्दस का गला काट दिया है तो मुकद्दस को उन्होंने मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेजबान राना मुबीन। नाज़रीन, पसंद की शादी का भयानक अंजाम। ससुरालियों की जानिब से जेठ ने अपनी भाभी को बड़े बुरे तरीके से जो है गला काटा और गला काटने के बाद उसके बाजू काटे गए, फिर भी उसका दिल ना बढ़ा तो उसके साथ अगर तुम मेरी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनोगी, इस वजह से मार दिया। असल वाकया क्या है? 2 बच्चों की माँ थी ये, जिसको बड़ी बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल किया गया। उनकी पुप्पो मेरे साथ मौजूद है और फैमिली मौजूद है, उनसे बातचीत करके सारा वाकया जानते हैं, असल हकायक है क्या और कब शादी हुई और किस तरह हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मां जी, अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे। मुकद्दस जरी सी शादी किस तरह हुई है दी? शादी पसंद दी सी मतलब ते ਕੀਤਾ ਨਿਕਾਹ ਨੂਨ ਚਾਚਿਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਤੇ ਕੀਤਾ हल्के कीता। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗੈਰ ਨਸ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਵੂਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੋ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸਨ ਉਹ? ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨੇ? ਜੇਠ ਕਿਉਂ ਜੇਠ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਜੇਠ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਣਾ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਲਿਗੜਾ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੇ ਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਰਦਨ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈ ਪੈਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਟੋਕਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਕਿਦੋਂ ਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ कितने साल का सी? ये 8 माह का था, ये मुकद्दस ने पाला है। मुकद्दस ने पाला ये बच्चा 8 माह का था, ये क्या मुकद्दस लगती है मुकद्दस? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी है मुकद्दस की? जी। तो ये 8 मुकद्दस कैसी बच्ची थी? मुकद्दस बड़ी अच्छी बच्ची थी, तो वो हमारे पास आती जाती थी। वो पिछले इतवार भी हमारे पास आई है, तो हमने कहा था इधर रुको। उसके मियाँ ने भाई, इसके भाई की हमने एंगेजमेंट करनी थी, मैंने इधर करवाया था रिश्ता, तो उसकी गेट मैंने कहा तुम आओ, कहती वो आने नहीं देता। मैंने कहा तुम आ जाओ, कुछ नहीं होता, तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट है। वो आई थी इधर मेरे पास, उसके मियाँ ने कहा था नहीं अगर तू जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। कहती तुम्हें छुट्टी, अगर तुम नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। तो वो कहती अच्छा चलो फिर चले। आ गई है मेरे साथ वो इधर एंगेजमेंट। जब हम लड़की वालों का घर गए, वो बाहर ही खड़ा रहा है, अंदर गया ही नहीं, बाहर ही खड़ा रहा है। वो बेचारी डरती रही, उसने खाना भी नहीं खाया, उसने गाना भी नहीं खाया। जिस दिन इधर हमारे घर से रात को वापस घर गई, उसने इतना मारा, उसकी मामियों ने भी बताया कि मुकद्दस को तशद्दुद करता रहा। जब जो अब करता वो पहले भी करता हूँ। वो बात ये कि उसने हमें बताया नहीं है, उसने हमें बताया नहीं है। कभी किसी हवाले से बातचीत हुई हो
मुकद्दस से आखिरी बातचीत कोई हुई हो आपसे? आखिरी बात वो एंगेजमेंट वाले दिन की थी, तो मैंने पूछा, कहती नहीं भाभी मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मैं तो इससे खर्चा भी लेती हूँ, ये डेली का मुझे 1000 रुपया खर्चा दे के जाता है। तो खर्चा मैं कुर्चा को नहीं कुछ देंदा भी सी नहीं वो देता। कुछ भी नहीं देंदा डरदी दसदी सी सिर्फ पर्दे रख दी सी। पर्दे रखदी सी ते वो होटल में खर्चा रात को भाई काम सी करता था। कुछ चीज चूज लेनी ते भाई को लेंदी सी हाँ जी भाई मेरे को आ को नहीं मेरे को आ को नहीं खर्चा कुर्चा भरा ही देंदे सन वो शादी वाले होटलों में काम करता था, उधर से रात को खाना लाता था 12 बजे या 1 बजे। उसको मोबाइल की भी इजाजत नहीं थी, वो रात को आता था, मोबाइल भी नहीं वो सी कहता था अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो। उसने यही कहा था अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्यों तुम भी क्यों छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कहता जिस मुझे बाप अच्छा ने नहीं जिस लगता। माँ ने पाला हो किस तरह बच्ची छोड़ वो सकती है? कहती है अगर तो मैं छोड़ दूंगी फिर आप भी छोड़ दो। यही इसका झगड़ा था 2-3 दिन से, तो इसी वजह से उन्होंने उसके जेठ ने अगर कहा वो इस तरह का मामला था तो अपना उसका खामन जो है उस पे तशद्दुद करता है, उससे कुछ करता, लेकिन जेठ का मेन मकसद तो ये था कि वो उसकी गंदी नजर जिसकी वजह से उसने मारा उसको। उसने मारा ही इसी वजह से है। वो सब लोग भी यही कहते उसका हैं। तो खामन कहाँ पे था जब उसको ये तशद्दुद किए सारा वो कुछ कह किया? रहे हैं कि वो खामद अम्मी को नंद के घर छोड़ने गया था, किसको? वो उसकी माँ को, अपनी वालदा को। अच्छा अच्छा, यानी हाँ, कि लड़का। मुकद्दस की सास को हाँ जी, छोड़ने के लिए गया हाँ हुआ जी, था उसके वो। नंद के घर। कितनी देर बाद जो है ये वकुआ पेश है उसके जाने के बाद? हमें तो रात को 7 बजे कॉल आई हमारे मामू की उकाड़े से हमें। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि मुकद्दस की ने ऐसे वो उसके मियाँ ने उसको कत्ल कर दिया छुरा मार के। तो मैंने अपने जो मेरे मामू अम्मी के जो भाई हैं, हमने उस मामू को फोन किया, मुकद्दस के मामू को फोन किया। उन्होंने कहा हाँ मुकद्दस का गला काट दिया है, तो मुकद्दस को उन्होंने मार दिया है। ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਫਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜेगे कोई नहीं फड़ेगे। बड़े गए किन्ने पड़े गए ने देवर भी की इंकशाफत की कीते ने, तफ्तीश की हुई? ये तफ्तीश वाले अभी हमें नहीं बता रहे हैं कुछ भी, तो इंशाल्लाह उन्होंने पकड़ लिया है, तो वो हमें बुला रहे हैं। मुकद्दस तो, का भाई है ये? जी पीछे मुकद्दस बड़ा का भाई भाई है जी। बड़ा भाई है। कितने बहन भाई थे मुकद्दस? मुकद्दस के चार। 4 भाई हैं। 4 बहन भाई थे आप? जी 2 साल मेरे से बड़ी थी मुकद्दस। मुकद्दस 2 साल बड़ी थी, यानी कि बड़ी बहन थी। बड़ी बहन जो होती है वो माँ का दर्जा रखती है, माँ की तरह प्यार करती है। बहनें तो आपको पता है भाइयों के साथ तो बड़ा प्यार करती है। किस तरह पता चला, किसने फोन किया? मामू आया था उधर घर पे, हम्म। काम पे मैं करना था ना, कि उधर मामू बताने आया था कि आपकी बहन का कत्ल हो गया था। कंडीशन किस तरह की थी जब आप पहुंचे वहां पे? ट्यूशन की गला काटा हुआ था उसका, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे पुलिस वाले, जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर इसलिए हमने वीडियो भी उनकी भैन को लई है अच्छा। मेरे बेटे ने हम्म। ये उनकी हमने बहन बड़ी को ले मुश्किल ली है वीडियो जो कत्ल होने की, जो ना बेड पे लेटी हुई है, वो कहती हमें किसी की इजाजत नहीं है, पुलिस वालों ने मना किया है। हमने कहा हम किसी को नहीं देंगे, आप मेहरबानी आप हमें दहा दें। एक आपने हमारे कहा नहीं मुकद्दस में हमारी बेटी है जिसका ये हमने कत्ल कहा हुआ था है। सर जी, नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे, उनकी हमने मिन्नतें की हैं, फिर बड़ी मुश्किल हमें मूवी दी है उन्होंने, दे के कहते हैं हमें पुलिस वालों ने मना किया किसी को नहीं देना। हमने ले लिए हैं, जब हमने देखा है हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हमें पता है हम किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, या हमारी बच्ची को पता है वो किस तरह उसका रूह तड़प उसका रहा है। दिल नहीं एक बाप होता है या माँ होती है, जब बच्चों के सामने उसकी माँ का कत्ल किया जाए तो बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। वो किस तरह की कंडीशन थी कि उसको मारने के बाद उसके बच्चे कहाँ पे थे? वो बाप है ही नहीं। वो बाप होता तो वो वैसा काम थोड़ी होता। वो बाप है ही नहीं। वो बाप के नाम के वैसे भी एक लानत का धब्बा है। वो बाप नहीं है। हम नहीं उसे बाप मानते। कल वो बच्चे भी हमारे हाथ से छीन के ले गए। ये ससुरालियों की जानिब से जो है मुकद्दस पे तो इतना तशद्दुद पहले किया जाता रहा, लेकिन मुकद्दस जो है वो पर्दे डालती रही कि शायद मेरा घर जो है वो बच सके। लेकिन उसको क्या बेचारी को पता था कि उसका घर तो नहीं बसेगा, उसको मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाएगा। ये कहानी थी आपके सामने रखी है कि और भी कई बच्चियां जो हैं वो ससुरालियों के तशद्दुद का जो है वो इस टाइम शिकार हैं, लेकिन वो अपने वालिदैन से इसलिए बात नहीं करती शायद ये ठीक हो जाएं और हमारा घर जो है वो बच सके। कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया, अपनी राय से जरूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन फैमिलीज़ को जो है मुकद्दस का इंसाफ मिल सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।